Assalamu alaikum. I'm your today's session host, and my name is Sayyida Elia Heather. I'm currently doing bachelor's from Khyber Medical University. And by the way, right now we don't have any viewers. Should we wait or not? No, we should continue, I think so. Okay, we have two viewers. But I don't know if I'm audible or not. Am I? Am I to you? Yeah, you're absolutely Okay. fine. Okay. Acha. So then I'll start with my introduction. My name is Sayyida Elia Heather, and currently I'm studying in Khyber Medical University, and I'm doing bachelor's. Uh, uh, like Khyber Medical University is in Peshawar. Those who don't know, I don't know. Okay. So I'll tell you guys a bit about holistic. आप लोगों को बिल्कुल एक आइडिया तो हो ही गया होगा होलिस्टिक के बारे में, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगी कि होलिस्टिक क्या कहते हैं, जो है एक हेल्थ केयर सर्विस है जो कि क्या कहते हैं अंडर वन एम्ब्रेला क्या कहते हैं एक रिहैबिलिटेशन टीम प्रोवाइड कर रहा है, विच इंक्लूड्स जनरल फिजिशियन, which includes occupational therapists, physiotherapists, speech and language therapists. Uh, so this is what is holistic about. ठीक है. एट द सेम टाइम्स जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है वो ऑनलाइन थेरेपीज दे रहा है, होम थेरेपीज दे रहा है, थेरेप्यूटिक डिवाइसेस क्या कहते हैं जो है उसकी भी फैसिलिटी दे रहा है. सो यस, एंड now we'll start our session. Okay, now firstly I'll introduce my guest, Ma'am Karishma Sania, who's an inspiration for so many people, especially for young girls like me. I look up to you, ma'am. And Ma'am Karishma has done masters in speech and language therapy. She's an owner of Karishma's clinic. At the same time, she's running a preschool in Gujarat, and at the same time, she's a consultant for medical and dental center. Assalamu alaikum, ma'am. I'm too late to say that, but still. It's okay. कैसी हैं आप? ठीक है? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक. So as you know कि जो हमारा आज का टॉपिक है, it's about the reasons and red flags of delayed speech and language milestones in the current time. तो मैम करिश्मा, आप इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले इसके बारे में एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दें, as it is a very important topic, मतलब especially for the young couples. I say it's very important. Yeah, because once we are having patients around us जो कि बहुत ज़्यादा delayed speech के साथ हैं और उनका इस तरह का situation है जैसे पेरेंट्स के साथ के बहुत सारी जैसे यंग फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं होता है कि कितने जो है वो नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे में. किस सिचुएशन में हम देखते तो बच्चा जो है वो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और अपने स्पीच के माइलस्टोन्स जो है वो उनको एक्वायर कर रहा है. तो वो क्या होता है कि वहाँ पर वो उनके लिए चीज़ों को वो स्टडी करती रहती हैं, गूगल करती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसमें उनकी चलती रहती है माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस भी चलते रहते हैं. तो ऑल दैट थिंग्स आर गोइंग इन देयर हेड. हम चाह रहे हैं कि हम उनको एड्रेस करें और एक प्रॉपर जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हम उन तक पहुँचाएं. तो माई टॉपिक फॉर टुडे इज बिकॉज जो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम लोगों के साथ बात तो कर रहे हैं मगर हम उनको यहाँ पर आई डोंट नो लाइफ पे कुछ हुआ, अगर कोई पेरेंट्स हुए जैसे तो हम उनके क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे. मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने फेसबुक पेज पे भी लाइव जाऊँ सो वी कैन हैव सो मेनी questions from there as well. So give me a moment to start. Sorry, ma'am, but can you speak a bit loudly? I can't hear you. Okay. I don't know why. Do I try to have a mic? Yes. Do you have a mic? It would be great. I do have. I think let me try. So मुझे please बताइएगा. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Okay. So, like, should I start asking questions?
आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, 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 मुझे आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। Okay, they are so tangled because मैं I आपको was मेरी आवाज़ comfortable आ रही on है? speaker, आपको मेरी आवाज़ सही से तो आ रही है? इसलिए मुझे थोड़ा अब अपने हेडफोन को ट्राई करना पड़ेगा। जी। जी। चलिए शुरू करें हम? हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा आपसे पहला जो क्वेश्चन है, इट्स अबाउट कि आई वांटेड टू आस्क अबाउट द रीजंस के किन वजह से या किन वजूहात की वजह से ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होता है। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर लें कि कौन से लोग जो हैं वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो उनको डील करते हैं। जैसे कि डिलेड स्पीच के साथ हो गए, कुछ आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स हो गए, वॉइस के प्रॉब्लम्स हो गए, स्वॉलिंग डिफिकल्टीज को स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हैं वो उनके साथ डील करती हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जहाँ पर लोगों को उसका आइडिया नहीं होता है कि किस तरह के जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। Sorry, I am having a trouble. There is a noise. Yeah, there's a noise. I don't know what's going on. I can hear my own voice. Yeah, there is something wrong. Okay. So I think Yeah, एक तो ये जब हम लाइव करते हैं कुछ भी तो इसमें इस तरह के टेक्निकल इश्यूज काफी ज्यादा आ जाते हैं. yeah. So It's okay. We are not perfect. हाँ, हाँ, तो लेट्स कम टू हम्म, द टॉपिक। बेसिकली जब आप का बच्चा जो है वो माइलस्टोन्स अगर हम उनकी बात करें जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, तो हम्म, हम बच्चों की एज के हिसाब से हम उनको कंपेयर करते हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जब हम उनको कंपेयर करें तो उनकी सिमिलर हो, उनके माइलस्टोन्स हों और एट द सेम टाइम वो बोल रहे हों या चल रहे हों या बैठ रहे हों। सो हम उनको कंपेयर करना इतना एक अच्छा या हेल्पफुल आइडिया नहीं हो सकता। सो इसलिए हर बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन्स को डिफरेंटली अचीव करता है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि बच्चे जो हैं वो लेट बोलते हैं या अनक्लियर बोलते हैं, तो क्या वो एक रेड फ्लैग हो सकता है? तो यस, अगर आपका बच्चा लेट बोल रहा है या वो भी बात को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ये एक रेड फ्लैग है जिसके लिए कि आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह हम्म, अगर आपको ये भी देखना है कि आपके बच्चे में बाकी को फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, डेवलपमेंटल डिले यानी कि उसके बाकी जो बैठने के, चलने के, क्रॉल करने के, नेक होल्डिंग उसकी, वो सब उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, क्या उसने वो ऑन टाइम अचीव किए हैं, जिसको हम अभी नेक्स्ट हम उनको डिस्कस भी करेंगे। जी, सो सबसे पहले इंशाल्लाह। तो जो डेफिनेटली एक चीज़ डिस्कस करने की है वो है ये कि हम इन रेड फ्लैग्स को डिटरमिन करें और फिर हम अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि डिलेड स्पीच के साथ हैं, हम उन बच्चों को जो है वो प्रॉपर उनकी असेसमेंट के बाद उनके साथ इंटरवेंशंस जो है वो अर्ली इंटरवेंशंस जो है वो स्टार्ट की जाए। सो ये कुछ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें कि जो इन्फ्लुएंस रीजंस कर रहे हैं, वगैरह हाँ, हाँ, किन वजूहात की बिना पर बच्चे लेट बोल रहे हैं, जी, तो जी, जी। करंट टाइम के हिसाब से जैसे कि आपने टॉपिक में मेंशन किया, तो थोड़ा-सा एक चीज़ मैं ये मेंशन करूँगी कि करंट टाइम या थोड़ा 10 इयर्स बैक या 20 इयर्स बैक शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। शायद पेरेंट्स इतने कंसर्न्स भी नहीं होते थे, इतना एजुकेशन भी नहीं था और बिल्कुल। यूजुअली उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था। होगा 10 साल का होगा, 12 का होगा, नहीं बोला तो अब ऑफ कोर्स आपको टाइमली चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो उनमें सबसे पहले जो है वो एक चीज़ जो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो ये कि आपका बच्चा कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा वो सुनता है या समझता है। ये आपको हर बच्चे में डिफरेंटली आपको देखने को मिलेगा। इसी बिल्कुल, तरह बिल्कुल। कुछ बच्चे जो हैं वो 2 से 3 फैमिलीज़ में सॉरी 2 से 3 लैंग्वेजेज़ जो बोली जाती हैं, उन फैमिलीज़ में वो ब्रॉट अप होता है, लेकिन वो ये होता है कि बाज़ वक़्त वो कुछ फ्लुएंट होने में उनको टाइम लग जाता है किसी भी एक लैंग्वेज में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी या पश्तो उनकी एक फैमिली लैंग्वेज है, जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे और फिर उसके बाद आप उर्दू भी उनके साथ बात करते हैं, तो हो सकता है कि उसको उर्दू में फ्लुएंट होने में थोड़ा टाइम लगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डिलेड स्पीच के साथ है। सिमिलरली कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके जैसे बड़े बहन-भाई भी हों घर में,
तो उनको वो बाज़-औक़ात उनके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, बहन-भाइयों को सपोर्ट कर देते हैं कि आप जो है उनकी जगह बोल देना या उनको सपोर्ट कर देना या उनके लिए पेरेंट्स की तरफ से जो है वो उनको कम्युनिकेट कर देना पेरेंट्स को। तो उस सूरत में भी बच्चे फिर वो थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं, वो कम बोलते हैं। लेकिन 2 लैंग्वेजेज़ बोलने से बच्चा जो है वो हम उसको ये कभी भी नहीं कहेंगे कि इस वजह से वो लेट है। इनफैक्ट वो बच्चे ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उनकी अच्छी होती हैं, इंटेलिजेंट उनको कंसिडर किया जाता है, जो एक टाइम में 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ को भी अगर बोल रहे हों तो। सिमिलरली अगर जी, हम जी। बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि बच्चों में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो आजकल देखने में आया है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सबसे ज़्यादा गैजेट्स दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं यस। या कोई भी जैसे टीवी पे बहुत ज़्यादा दे दिया, कार्टून्स देखने शुरू हो गए बच्चे। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो बेसिकली बच्चों को डिलेट कर देती हैं क्योंकि जैसे कार्टून्स की बात की जाए तो बच्चे कार्टून्स जो देख रहे होते हैं वो तो किसी और लैंग्वेज में होता है और हम लोग जो है वो उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी या पश्तो या सिंधी कोई भी लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि बच्चे थोड़े से क्योंकि वो जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं वो उनके घर में जो बोली जा रही है उसको तो अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन एक बिल्कुल न्यू लैंग्वेज को तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो वो कुछ फिर मिली जुली जैसी उनको सुनाई पड़ती है वो कुछ उसका मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज आ जाता है कुछ तो वो बाज़ पेरेंट्स ये भी इस चीज़ को भी कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना ये कुछ अजीब सी ही ज़ुबान बोलता है तो वो जो सुनता है वो बेसिकली उसी को ही इमिटेट करता है उसी को ही कॉपी करके बोलने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में वो कंफ्यूज भी हो जाता है ज़ाहिर है उसको उस लैंग्वेज के पर्टिकुलर लैंग्वेज जो वो सुन रहा है जैसे टीवी वगैरह पे उसका मीनिंग्स या उसको कैसे उसने प्रॉपर ग्रामेटिकली या कैसे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करके उसने बोलना है वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा इसी ओके। तरह अगर हम बात करें कि वो फैमिलीज़ जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रही हैं या अलग फैमिली सिस्टम है लाइक फादर, मदर एंड एक बच्चा है घर में, जी, पेरेंट्स जी, जी। दोनों वर्किंग हैं और उनके पास कम्युनिकेशन टाइम इतना नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ। सो वो चीज़ जो है वो थोड़ी-सी उनको उस तरह से भी बच्चों को थोड़ा डिले कर देती है कि ये एक लाइफ़स्टाइल है जो अभी के बारे हम करंट टाइम के बाद अगर बात करें जी, 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 तो ये बिल्कुल। उसमें एक इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकता है। इसी तरह क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं या आपने रिसेंटली मूव किया है, तो बच्चे जो नहीं बोल रहे तो यहाँ पर जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे, जो उन्होंने सीखी, वो हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो हैं वो वहाँ गए हैं और वो इटली में हैं और वहाँ पर इटालियन बोली जा रही है, वहाँ पे जो उनका पीयर ग्रुप है, जिनके साथ वो खेल रहे हैं, वो बच्चे इटालियन बोल रहे हैं। सो वो उस बच्चे को समझने में, उन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में, सोशलाइज़ करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर ज़रूर है। उसको हम कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे। उसके लिए भी आप स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की सर्विसेज़ या उनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि हाउ दे कैन बिल्ड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट या क्या उनको करना चाहिए ताकि वो उस लैंग्वेज को भी जल्दी सीख पाएँ। बच्चे यूजुअली अर्ली एज में बहुत जल्दी डिफरेंट लैंग्वेजेज़ को सीख जाते हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, तो आप मुझ जैसे उम्र के बच्चों की मदद कर सकती हैं एक नई ज़ुबान सीखने में? हाँ, अगर वो मुझे लैंग्वेज आती होगी तो डेफ़िनेटली, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आप ये कहें कि मैं पश्तो सिखाऊँगी तो मुझे तो वो बिल्कुल नहीं आती या मुझे इटालियन सिखाएँ कहने एक ऐसा ही मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो थी जिसमें कि एक पेशेंट ने थी और वो स्टैमरर थी एंड शी आस्क्ड कि क्या आप मराठी में सिखाती हैं? स्पीच थेरेपी आप मराठी में करवाएँगी? सो ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज हमें आती होगी इसीलिए जो भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट होती हैं उन्हें उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उस नेटिव लैंग्वेज को वो लर्न करें और उतनी फ्लुएंटली वो बोलें और समझें। And you know, this is one of the role of speech and language pathologists which mostly people are not aware about. मतलब हुँ, I was like like watching those YouTube videos और उसमें यही मैंने देखा था कि एक speech and language pathologist एक चाइनीज औरत को इंग्लिश सिखा रही थी, बट बहुत हुँ। से सॉरी टू से बट बहुत से स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को खुद नहीं पता होता कि दिस इज देयर रोल, कि ये भी एक उनका रोल है। हाँ, बिल्कुल देखिए वो डिपेंड करता है, अगर आप उस लैंग्वेज में खुद मास्टर हैं तो आप सिखा सकते हैं। सेकंड जो है वो ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उनको लैंग्वेज सिखा रही है, अगर आपका पेशेंट उस लैंग्वेज के साथ है और आप एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है जिस पेशेंट के साथ आप काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हू इज़ रिसेंटली moved to Peshawar.
या किसी KPK के किसी एरिया में अगर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो अगर उनको पश्तो नहीं आती तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे को स्पीच या लैंग्वेज सिखाना। स्पीच तो किसी हद तक ऑफ कोर्स वो तो करा सकती हैं, लेकिन लैंग्वेज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जहाँ जो आपको लैंग्वेज आती है उसके बारे में आपके पास एक अच्छा नॉलेज भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो। नेटिव लैंग्वेज में तो हम सारे ही बहुत अच्छे फ्लुएंट होते हैं और इंटरेस्टिंगली लड़कियाँ जो हैं वो जल्दी बोलना शुरू कर देती हैं लड़कों की निस्बत अगर हम डिलेड स्पीच की बात करें तो। अच्छा, ये बिल्कुल और बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन लड़कियां एक दिन में ज़्यादा अल्फाज बोलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। अच्छा, हाँ, we'll stick to बिल्कुल, our ये topic and I'll ask another question कि एक बच्चा है जो कि 1 साल का हो गया या 1.5 साल का हो गया है, ठीक है? तो ऐसे कौन से माइलस्टोन्स हैं जो उसको अचीव कर लेने चाहिए? हम ब्रीफली मैम आप डेवलपमेंटल को भी टच कर दें और आप स्पीच एंड लैंग्वेज के माइलस्टोन्स को भी टच कर दें। अच्छा ऐसा है कि हम कुछ और इससे पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम जो ऐसे फैक्टर्स, क्योंकि हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो हम पहले उनको कवर कर लें ताकि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए, जो उनके लिए बिल्कुल। जाननी शायद बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे, तो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द सेंस के बच्चे अभी देखने में आया है कि रेस्टोरेंट्स में भी हैं तो भी बच्चे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स की कोई गैदरिंग है तो उसमें भी बच्चे गैजेट्स यूज़ करें और अब जैसे हम सब लोग कोरोना की वजह से घरों में हैं, पैंडेमिक है और नोबडी इज गोइंग आउट और इस तरह से डाइनिंग डाइन आउट वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो वो उस सिचुएशन में क्या है कि पेरेंट्स का ज़्यादातर टाइम खुद का भी है मोबाइल पे ही गुजरता है और बच्चों का तो बहुत ज़्यादा गुजरता है। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को लिमिटाइज करना है, उस टाइमिंग को स्केजुलाइज करना है ताकि आप बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें बच्चे सीखते हैं उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप जो गैजेट्स वगैरह या उस तरह से पेरेंट्स को देखा गया है कि ABC 1 2 3 वो सब कुछ चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं बहुत अर्ली एज में ही, एट द एज ऑफ 9-10 मंथ्स में भी। सो वो ये चाहते हैं कि वो बच्चे उनके जल्दी-जल्दी से ABC सीखें और वो स्कूल जाएँ या जो भी होता है। सो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक स्क्रीन टाइम जो है उसका इफ़ेक्ट बहुत अजीब है, जिस तरह से बहुत बुरा भी है। लैंग्वेज डिले भी उसमें आता है, इसी We तरह were talking about it and हाँ। I was asking you कि कौन सी एज में हमें एक बच्चे को स्क्रीन पकड़ानी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ उसका एक्सपोजर आई थिंक कराना चाहिए हाँ, बिल्कुल और वो किस ऐसे ही है कि एज रिलेटेड तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि उस टाइम को आप लिमिटेड करते हैं कि जहाँ पर उसके जी लिए जी वो अंडरस्टैंड करना चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें कि वो बच्चे जिनको गैजेट्स दिए गए, जिन्होंने गैजेट से लर्निंग की और वो बच्चे जिनको टैंजिबल आइटम्स दिए गए, वो चीज़ें जो कि जिनके साथ जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या दूसरे टॉयज़ हैं, जिनको नेचुरल एनवायरनमेंट में सिखाई गई, उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा था कंपैरेटिवली उनके जिनको टीवी या गैजेट्स से सिखाया गया। क्योंकि बच्चों की मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी होती है एट दिस टाइम और उनको उनको वो चीज़ें में जितना वो एनवायरनमेंट में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतनी अच्छी वो लर्न कर पाएंगे। तो स्क्रीन टाइम की बिल्कुल वजह से बच्चों की वोकेबलरी भी कम हो जाती है, वो इनएक्टिव भी हो जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स जब इतना टाइम आप बैठे रहेंगे तो आपका बच्चों में ओबेसिटी के भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है और अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने आप को प्रॉपर उस तरह कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। जैसे हम बाकी फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उनमें सबसे पहले जो अगर बात की जाए तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कोई फिज़िकल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चे जिनका क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है, उनमें भी डिलेड स्पीच या लैंग्वेज के जो है वो हम कहते हैं कि चांसेस हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। इसी तरह अगर एक बच्चे का जिसको आम तौर पे तनवा कहा जाता है शॉर्ट फिल्म की वजह से, जिसमें कि ज़ुबान की मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होती और उसकी वजह से भी लोगों में ये कहा गया है कि वो लेट बोलते हैं वो बच्चे। उसकी वजह से वैसे ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं होती क्योंकि मूवमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होती, रैपिड नहीं होती और बहुत सारी डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो मूवमेंट्स टंग को जो उसको करनी होती हैं वो नहीं कर पाती जिसकी वजह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है वो लिमिटेड हो जाती है। जी जी इसी तरह जो है वो डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी है, ब्रेन डैमेज एट द टाइम ऑफ बर्थ और फिर कुछ सिंड्रोम्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम्स हो गया, डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं जिनकी वजह से बच्चों की फिजिकल इम्पेयरमेंट्स के साथ साथ स्पीच की इम्पेयरमेंट्स, लैंग्वेज की इम्पेयरमेंट्स भी देखने में आई हैं।
इसी तरह अगर हम ओरल मोटर प्रॉब्लम्स की बात करें, जिसमें कि वेरी कॉमन है इसके, जिसमें हमारा ऑफ कोर्स ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लैंग्वेज की प्रोडक्शन में, स्पीच की प्रोडक्शन में। सो चाइल्डहुड प्रेक्सिया जो है वो देखने में आया है, बहुत कॉमन है बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चे लाइक बोलना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को जो है वो हमें इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये एक कंट्रोलिंग द मसल्स है, जिसमें मोटर प्रेक्सिया प्लानिंग में प्रैक्टिस इज अबाउट मोटर प्लानिंग कि आपकी मोटर प्लानिंग सही नहीं होती। जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है नोज, ग्रास, स्पीक्स, वो मतलब आपके लिप्स वगैरह जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो बच्चे लेट बोलते हैं। इसी तरह अगर हम जर्नल डेवलपमेंट की बात करें तो मतलब बच्चे जो हैं वो बाज़-औक़ात रिपीटिंग उनका जो है वो रेपिटिशन उनकी डिले होती है, या वो इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो उनको सिखा रहे हैं वो उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कॉम्प्रिहेंशन शायद इतनी अच्छी नहीं होती है, और वो फिर जो जो बाकी लोग कह रहे होते हैं वो उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो फिर उनके फिर इसी तरह से उनके जो इमोशंस हैं या जो उनकी फीलिंग्स हैं वो उनको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो ये जो एक जर्नल डेवलपमेंटल डिले आता है उसमें में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो भी बच्चों के इम्पेयर्ड होते हैं इसी तरह से, क्योंकि वो एज अकॉर्डिंग एज लेवल नहीं होते। फिर डिफरेंट अगर हम बात करें इन्फेक्शंस की, जैसे ईयर इन्फेक्शन या हियरिंग लॉस जो है, उसकी वजह से भी ऑफ कोर्स बच्चा एक सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं। एक बच्चा जो कि अगर हम उसको बात करें कि अगर उसको ईयर इन्फेक्शंस रहे हैं, सो दैट डजंट मीन कि वो उसको डेफिनेटली उसको हियरिंग लॉस होगा ही होगा या वो डिलेड स्पीच होगा ही होगा। तो ये कॉमन एक इन्फेक्शंस हैं जो कॉज कर सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि इन प्रॉब्लम की वजह से डेफिनेटली आपको आपके बच्चे को डिलेड स्पीच जो है होगा। अगर ऐसा होता भी है तो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो आपके बच्चे की स्पीच के प्रॉब्लम्स को वो इंक्रीज जो है वो नहीं करेगा। उसको जैसे ही आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आप अपने कंसल्टेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप डिस्कस करते हैं, तो उनके सॉर्ट आउट होते ही बच्चे जो हैं वो वापस अपनी स्पीच को डेवलप कर लेते हैं, लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं। और जहाँ तक हियरिंग प्रॉब्लम्स की बात है, वहाँ पर ऑफ कोर्स आपको बच्चे को उसकी असेसमेंट करवानी, जो कि हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को। अगर वो बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो आप घर पे भी स्क्रीनिंग करें, जिसकी वीडियोस भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आप कैसे घर पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स वो बच्चे को कॉपी करना नहीं आएगा, बच्चे प्रॉपर लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलेंगे भी नहीं, करेक्ट भी नहीं बोलेंगे, साफ यानी कि उनकी ज़ुबान नहीं होगी। इसी तरह न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो कि आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। उसमें एडीएचडी हो गया, एडीएचडी हो गया, जिसमें बच्चे जो हैं उनको सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, उनको कम्युनिकेशन में सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये सर्जन ऐसे इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को या अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना ज़रूरी है, जिसके बाद आप जो है वो अपना आपका जो फ़िक्र है वो कम से कम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी। जी जी। मैम अब माइलस्टोन्स पे बात करें, जो एक माइलस्टोन्स पे अब के एक अगर 1.5 या 1 साल का बच्चा है तो उसको कौन-कौन से माइलस्टोन एक्वायर कर लेने चाहिए अपनी एज के मुताबिक? हाँ, बिल्कुल, जैसे एक बच्चा फर्स्ट बर्थडे तक उसकी वो ही स्टार्ट्स यूजिंग डिफरेंट साउंड्स, लाइक बाब्लिंग स्टार्ट कर देता है, जैसे बाबा, दादा, इस तरह से कुछ सिमिलर से साउंड्स, जैसे क कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो ये होता है कि वो उन साउंड्स को इमिटेट करना शुरू कर देता है जो वो सुनता है अपने इर्द-गिर्द में। इसी तरह इसी के साथ-साथ चलते-चलते वो मतलब जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो फिर वो लफ्ज़ बनते जाते हैं, वही साउंड्स, फिर वो उन लफ्ज़ों के छोटे जुमले बनते बनते जाते हैं, सेंटेंसेस बनते जाते हैं। और तकरीबन 2 साल तक की एज में तो एक बच्चे के पास अच्छी खासी वोकैब्युलरी आ जाती है, और फिर वो काफ़ी हद तक के कॉम्प्लेक्स किस्म के जो सेंटेंसेस हैं, वो भी वो बोलना शुरू कर देता है। सो इसी तरह अगर हम बात करें लाइक 1 ईयर आपकी बच्चे की फर्स्ट बर्थडे के बाद से लेके 1 डेढ़ साल की उम्र तक, तो उसमें क्या जो है वो माइलस्टोन्स होते हैं, वो अगर अगर आपके बच्चे में ये नॉर्मली उसने एक्वायर नहीं किया है तो इट मीन्स कि वो डिलेड स्पीच के लिए ये आपके पास रेड फ्लैग्स हैं, आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि आपके बच्चे को डिलेड स्पीच हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हो जाएगा। So, अगर ये वो चीज़ें बच्चे ने एक्वायर नहीं की हैं, so that is what you have to discuss about.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 12 टू 18 मंथ्स की बात करें तो उसमें बच्चे के पास काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है साउंड्स के लिए, मामा, बाबा, डाडा, गागा, इस तरह की वो साउंड्स जो हैं वो बोल रहा होता है। फिर इसी तरह सिंपल डायरेक्शंस को भी जो है वो फॉलो कर रहा होता है, जैसे ये पकड़ लो, ये ले लो, इधर देखो, इस तरह की डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और उसी तरह जैसे आप उसको ब्लॉक्स पकड़ाएं या टॉय पकड़ाएं तो आप उसको कहते हैं ये ले लो और वो पकड़ लेता है, ठीक है। फिर इसी तरह जब वो अब वो अपनी एडवांस जो कम्युनिकेशन है उसकी तरफ जा रहा है, जहाँ पर उसने नए लफ्ज सीखने हैं, वो कॉपी करना शुरू कर देता है नए लफ्जों को, ट्राई करता है उन वर्ड्स को जो उसने आप उसके साथ बोलते हैं या जो रिपीटेडली बोलते हैं, तो वो उनको कॉपी करता है जो उसके साथ बातचीत होती है। फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, दूध देते हैं, पानी पीना है या इस तरह की, तो उन वर्ड्स को वो एक वर्ड की हद तक वो उन वर्ड्स को बोलना शुरू कर देता है। या समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चे जैसे अगर उसको जूस चाहिए, पानी चाहिए या उसको दूध चाहिए, तो वो कंप्लीट वर्ड तो नहीं बोलते लेकिन कुछ सिमिलर सा मिलता-जुलता सा वर्ड बोलते हैं माँगने के लिए, जब उनको चाहिए होता है, डिमांड कर लेते हैं, पूछ कह लेते हैं कि हमें मतलब ये वो, उस सेंस में वो अपने वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे पानी के लिए पा, या अगर आप उसको मम कहते हैं, कह के बुला रहे हैं पानी के लिए, तो वो मम कहना शुरू कर देता है। जू से तो हो सकता है उसको जूही या जू, जो भी आप उसके साथ प्यार से अगर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हो सकता है वो उसी को ही रिपीट करना शुरू कर दे। फिर अगर हम बात करें तो वो ऑफ कोर्स डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उनको जैसे-जैसे उसने ग्रो अप करेगा, उसके साथ-साथ उसके साउंड्स, उसके वर्ड्स जो हैं वो उन पे रिस्पॉन्सेज़ भी उसके बढ़ते जाएँगे, इम्प्रूवमेंट्स भी आती जाएँगी। और फिर बहुत सारी जो वोकलाइज़ करने के साउंड्स हैं, उनको भी वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स के साउंड हो सकते हैं, जैसे म्याऊँ, बिल्ली उसके लिए घोड़े के लिए कुछ भी इस तरह से डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो हो सकता है उनको रिपीट करना शुरू कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा अपने नॉर्मल स्पीच के माइलस्टोन्स को एक्वायर कर चुका है या कर रहा है। अगर तो देखिए इम्प्रूवमेंट आ रही है टाइम के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ, वो इन चीज़ों को उसका इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर तो वो रुक गया या रिग्रेशन हो गया यानी वो पीछे चला गया, तो दैट इज़ द रेड फ्लैग एज़ वेल। सेकंड जी हम अगर नेक्स्ट एज ग्रुप की बात करें तो जैसे 18 मंथ्स से लेके 2 इयर्स की एज तक, सेकंड बर्थडे बच्चे की आ गई है जैसे, तो उसमें जी जी काफ़ी हद तक उसकी जो है वो डेवलपमेंट में उसकी वेरिएशन आ जाती है। उसकी बच्चा चल रहा होता है इंडिपेंडेंटली, खेल रहा होता है, थ्रो कर रहा होता है चीज़ों को, बॉल को जैसे पकड़ रहा होता है। सिटिंग उसकी आती है, आप उसको कमांड्स देते हैं, वन स्टेप कमांड्स को जो है वो फॉलो कर चुका होता है पहले, फिर अब वो टू स्टेप कमांड्स को फॉलो करता है। जैसे हमने पीछे बात की कि अगर आप उसको कहते हैं ले लो बॉल, या इस तरह से वो सिंपल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, जो आप उसको कहते हैं वो काम को समझ जाता है, उसको उस तरह से जी परफॉर्म कर देता है और काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो उसकी वोकैब्युलरी में आ चुके होते हैं जिनको वो बोलना शुरू कर देता है। और इसी तरह जो अब 2 इयर्स की एज में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो ये कि अगर आप देख रहे हैं कि उसकी वोकैब्युलरी जो है वो बढ़ रही है और वो न्यू वर्ड्स जो है वो उनको ऐड कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स वो रेड फ्लैग है, अलार्मिंग साइन है। और फिर वो छोटे जुमले अगर बनाना शुरू हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दे दो, मुझे खाना है या मैंने खाना है, या ऊपर जाना, या बाहर जाना, इस तरह की वो चीज़ें अगर छोटे जुमलों को अगर वो यूज़ करना शुरू हो गए, जो कि वो 2 इयर्स की एज तक यूजुअली बच्चे इसको एक्वायर कर देते मैम हैं। हम जब बात कर रहे थे तो हमें इन इन चीज़ों को पेरेंट्स को सोचना चाहिए, इन चीज़ों पे क्या कहते हैं जो है व्हाइल देयर किड इज ग्रोइंग अप, इन चीज़ों पे उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम इसीलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि अगर वो उसको सुन रहे हैं तो उनके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल किसी भी ऐसी ही मिलती जुलती चीज़ के बारे में अगर उनके माइंड में कुछ सवालात हों तो वो उनको जो है वो हमसे अभी पूछ we भी have सकते हैं। questions but क्या कहते हैं we'll answer them और in the अगर end, we have तो हो सकता questions है उनके yeah। बहुत सारे सवालों के जवाब हमारी इसी स्पीच में या जो हम कॉन्वर्सेशन अभी कर रहे हैं इसी में ही उनको मिल जाए। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि हो सकता है उनके बच्चे It's के साथ very important ना हो topic, you तो know, वो it's क्योंकि उनकी बिकॉज प्रॉब्लम आपको कोई सॉल्व हो गाइडेंस जाएगा। गाइडलाइन या कोई आपको गाइडेंस नहीं देता और बहुत से एग्जैक्टली लोगों को पता ही नहीं होता बिकॉज लाइक एग्जैक्टली जाहिर सी बात है
उनका भी अगर फर्स्ट बॉर्न होता है तो दे हैव नो आइडिया कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, और बिल्कुल। क्या चीज़ों पे फोकस या कंसंट्रेट करना चाहिए। एग्जैक्टली देखो 2 इयर्स की एज में तो बच्चे के पास बहुत सारा कुछ आ जाता है, वो नेम करना शुरू कर देता है इनफैक्ट अपने बॉडी पार्ट्स को, एनिमल्स को, जो जैसे घर में पेट्स हो अगर उनको, या अगर आप उसको कोई बुक से दिखा रहे हैं या अगर आप उसको कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो आप उसको बता रहे होते हैं देखो ये शेर है, ये बिल्ली है, ये कौवा है, या जो भी है, तो जो उनको उसके एनवायरनमेंट में जो चीजें आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं वो उनको सीखना शुरू कर देता है और उनको यूज भी करना शुरू कर देता है। और इसे मतलब मैंने कहा ना कि जैसे वो छोटे जुमले जब उसने मतलब उनको करना सीख लिया तो हो सकता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी ना हो, और लेकिन पेरेंट्स जो है वो थोड़े कंसर्न हो जाते हैं कि अभी 2 इयर्स का हो गया, अभी तो ये सही नहीं बोलता, ऐसे नहीं बोलता। तो चले, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके जो कंसर्न्स हैं वो किसी हद तक आप उसमें रिलैक्स भी हो जाए, और अगर वाकई में ये चीजें हैं तो देन यू हैव टू वेक अप एंड टेक एन इमीडिएट एक्शन, ताकि आपके बच्चे का जल्दी हम उसकी इंटरवेंशन की तरफ बढ़ सकें और वो अपनी लाइफ में जो उसकी लैंग्वेज का डिले है वो उसको बहुत जल्दी कवर अप कर पाए। तो जैसे मैंने कहा कि उसकी वो नेम करना शुरू कर देगा बुक्स को, उसके आसपास की चीजों को, तो वो 2 साल की एज में काफी हद तक बच्चे जो हैं वो उसमें अच्छा उसको लर्न कर जाते हैं। ओके ओके। हमें 3 इयर्स की डू वी हैव टाइम कि हम 3 इयर्स की एज के माइलस्टोन्स के बारे में बात करें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हम यूजुअली यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को 3 इयर्स तक आपको डेफिनिटली स्पीच लैंग्वेज के जो डिलेज माइलस्टोन्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और 3 इयर्स तक आपका बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है जिसके बारे में कि यूजुअली पेरेंट्स अगर वो नॉर्मली डेवलपमेंटल उसके माइलस्टोन्स बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हैं, तो वो इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है, डिले हैं, तो फिर पेरेंट्स कंसर्न भी होते हैं। तो वो 2 इयर्स तक तो हम वेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा 2 इयर्स से 3 इयर्स तक जाता है, तो वो थोड़ा-सी परेशानी बढ़ जाती है पेरेंट्स की। तो इसलिए हमें इस एज ग्रुप को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस एज ग्रुप में तकरीबन बच्चे की वोकैब्युलरी जो है वो 200 से अबव हो जाती है। जो वो वर्ड डेली लाइफ में जो है वो यूज़ कर रहा होता है, उनको उसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बच्चा जो है वो राइम्स सीखना शुरू कर देता है। आप बच्चों मतलब अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप उसको सिखा रहे हैं, कुछ जैसे पेरेंट्स कलमा उसको सिखा रहे होते हैं, तो बच्चा उसको वापस कॉपी करना शुरू कर देता है, और फिर वो याद भी करता है, और उसको जब आप उसको कहें तो वो सुना भी देता है कि आप उसको, जैसे कोई अंकल या आंटी उसके आए हैं तो आप उनसे कहते हैं कि आप उसको आप बताइए कि आपको कलमा आता है, तो बच्चे जो है वो यूजुअली सुना देते हैं। सो इस एज में 3 इयर्स की एज में बच्चा जो है वो मोर देन 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस जो है वो उसको पर्टिकुलरली फॉर्म कर लेता है। उसको थोड़ा-सा ग्रामेटिकली ये भी ऑकवर्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो, दोनों सूरतों में ग्रामेटिकल एरर्स तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को जो है वो, अगर हम लैंग्वेज के हवाले से असेस करने की बात करें तो उनको देखा जाता है। और इसी तरह बच्चा जो है वो इस एज में कलर्स को, शेप्स को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स के नेम्स हो गए, और फ्रूट्स नेम हो गए, इन सब चीज़ों को वो जो है वो लर्न कर लेता है, उनको आइडेंटिफाई भी कर लेता है, और फिर अपनी अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक सी उनको एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, जैसे मुझे रोना आ रहा है। कुछ क्यूट बच्चों को आप देखे होंगे आपने वीडियोस के, जो वो कह रहे होते हैं कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख लगी हुई है। तो वो इस तरह की फीलिंग्स को वो जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जी ओके। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम, जो ये कल्चर या हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों को अर्ली एज में मॉन्टेसरीज भेज देते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए कि लाइक इज इट राइट और नॉट? और देखिए अगर हम बात इतनी अर्ली करें एज कि में भेज देना चाहिए कि नहीं? अर्ली अर्ली इतना अर्ली एज, जैसे मैंने अभी कहा कि 3 इयर्स की एज में बच्चा जो है वो ये स्टार्ट कर लेता है कि उसको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स के, एनिमल्स के, या अगर आप उसको राइम सिखाना शुरू कर दें तो वो 3 इयर्स की एज में वो एक्वायर हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे को 2 से 2.5 साल की उम्र में ही आप उसको मोंटेसोरी या प्ले ग्रुप में डालते हैं, बिकॉज ये तो उसका उसका अभी लर्निंग टाइम है, और उसकी टाइम से बहुत पहले आप उससे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन नहीं है अगर आप बच्चे से करें तो। सो बेहतर ये होता है कि आप 3 इयर्स की बात
बच्चों को जो है वो स्कूल में डालें। आइडियली तो 3.5 ईयर्स में ही बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर एक पेरेंट है, उनको लगे कि उनका बच्चा डिले की तरफ जा रहा है, स्पीच डिले या लैंग्वेज डिले की तरफ जा रहा है, तो उनको कितना जल्दी कंसल्ट करना चाहिए एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ? देखिए, इट्स बेटर कि अगर एक बच्चा जो है वो नहीं बोल रहा है तो देन आप उसको 2.5-3 साल की एज तक तो आप उसका वेट कर लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंसर्न हैं तो हम 2.5 ईयर्स की एज में भी या जब भी पेरेंट्स अगर कंसर्न हो और वो चाह रहे हों कि आप थेरेपी दें हमें, तो हम उनको थेरेपी एडवाइस कर देते हैं। हम उसके साथ बच्चे के साथ अटेम्प्ट करते हैं। उसको अर्ली इंटरवेंशंस के तो जैसे मैंने कहा कि उसके तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। तो वो जितने भी जल्दी हम अगर उन चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं तो उतने जल्दी उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। और हम अगर जितना लेट करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी लैंग्वेज की ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाइमली उनको एक्वायर होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाती हैं, जो कि फिर बच्चे में लैक करती हैं अगर थेरेपी प्रॉपर नहीं होती है तो। देखिए, अगर ओके। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा छोटा है और आपको लग रहा है कि उसकी बात आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है? या वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आपको नहीं समझा पा रहा, या फिर जो आप उसको कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा। मतलब समझने में और बोलने में दोनों में उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि एट द सेम टाइम ही आपको जो है वो स्पीच थेरेपी सर्विसेज़ को ले लेना चाहिए। ठीक है। आई हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड कि मैम वैसे तो लाइक सारी एयर्स इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे के, लेकिन कौन सा आप ऐसे केयर पे फोकस करेंगी कि जिसपे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अपने बच्चे को एक अटेंशन देनी चाहिए? एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि जैसे कितने गैप बाद दे शुड हैव अनदर चाइल्ड? देखिए, This is ये something in तो my mind. I हाँ, do ये think it really affects. I think it does have an influence. अब तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो कुछ जो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड मदर्स हैं वो आइडियली भी जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि 2.5 ईयर्स का गैप होना चाहिए ताकि आप बच्चे को प्रॉपर उसको भी टाइम दे पाएँ, मदर की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप बात करें आपका पहला क्वेश्चन ये था कि हम किस पर्टिकुलर एज के बारे में बात करें कि उसमें पेरेंट्स को ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, तो आई थिंक आफ्टर एज 2, 3, 4 तक। तो यूजुअली बहुत सारी Oh. चीज़ें 2 इयर्स तक रिज़ॉल्व हो जाती हैं, तो 2 एंड 3, 4 तक आपको 4 तक तो वैसे नहीं जाना चाहिए। इट्स बेटर कि अगर आपको 3 इयर्स में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे कि हमारे कौन से ऐसे साइन्स हैं, कौन से ऐसे जो है वो अलार्मिंग पोज़ीशंस हैं लैंग्वेज की, या कौन-सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें जो है वो बच्चे को देख लेना चाहिए और उसको ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए। बेसिकली 2 इयर्स की एज में ही पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत कीनली, कुछ पेरेंट्स बहुत कीनली भी ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उनको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है अगर वो करते हैं। ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मैम, बिकॉज हम फिर क्वेश्चंस लेते हैं बिकॉज काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, तो आई थिंक इट्स तो गोना टेक टाइम, दैट्स व्हाई एनीथिंग यू वांट हाँ, टू ऐड हम आई और थिंक वी हैव हाईलाइट ऑन? डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि मेरा ख़्याल है कि पेरेंट्स को पता होने चाहिए। अगर उनके जो भी हम नए क्वेश्चंस कुछ बोलने वाली हूँ, अगर उनके बच्चे में इन क्वेश्चंस को लेकर के अगर उनके पास उनको ये लगता है कि हाँ, ये तो मेरा बच्चा नहीं करता, तो देन इट मीन्स कि उनको उनके बच्चे को रेड फ्लैग्स अपीयर हो रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और आपका बच्चा डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज के साथ है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दोज़ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें अगर हम, तो सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप बेहतर है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पीडियाट्रिशियन जो भी आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर लें बच्चे को, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को भी आप विज़िट कर लीजिए ताकि वो प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपकी बच्चे को जो है जो भी उसका डायग्नोसिस हो वो उसको दे पाए और उसकी जल्दी टाइमली उसकी इंटरवेंशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँ। अगर तो आपका बच्चा बोलने की ट्राई करता है, यानी अगर वो आप ये देखें कि क्या आपका बच्चा बोलने की कोशिश करता है, आवाज़ें निकालता है, लफ्ज़ों को इमिटेट करता है, गलत नहीं कुछ भी। अगर नहीं तो ऑफ़ कोर्स ये एक रेड फ्लैग है। जैसे मैंने कहा कि पहले ही कि इन सवालात के जवाबात अगर आपके आप
उनको सुनते हुए आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं करता, तो इट मीन्स आपके बच्चे को डिलेड स्पीच लैंग्वेज हो सकता है। अगर आपका बच्चा दूसरों में इंटरेस्ट नहीं लेता, यानी आप आप कौन हैं, आप बच्चे के अब्बू कौन हैं, बच्चे के भाई बहन कौन हैं, उसको फ्रेंड्स में इंटरेस्ट है नहीं है, वो सोशलाइज नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। क्या वो नए लफ्ज़ जो हैं, जो उसने सीखे हैं, क्या वो उनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता है, या कि जो सीखे वो रिग्रेस हो गए, भूल गया, या वो जितने सीखे बस उतने ही हैं और नहीं बढ़े आगे, तो इट मीन्स कि ये कलामी सिचुएशन है। क्या वो डिफरेंट साउंड्स को जो आप उसके साथ बोलते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ली है, बिल्ली उसके आसपास में रहती है, घर में है, या अगर आप कोई उसको डिफरेंट साउंड सिखा रहे हैं, तो क्या उनको वो मिमिक करता है, उनको कॉपी करता है, वैसा बोलता है? अगर नहीं, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। क्या वो रिएक्ट करता है म्यूज़िक पे? यानी म्यूज़िक होगा, बाज़ वक़्त कुछ बच्चे जैसा भी आपका एनवायरनमेंट हो घर पे, कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ जैसे टॉयज़ में से म्यूज़िक होता है, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कुछ बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो जो भी वो रिएक्शन आता है, क्या वो रिएक्शन दे रहा है, या कि वो बिल्कुल उसको कोई रिस्पॉन्सेज़ ही नहीं है? तो यहाँ पर भी सोचने की ज़रूरत है। क्या वो अगर आप उसके साथ एबीसीडी गेम्स कुछ कर रहे हैं, आप उसको इमिटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो सुन के समझ पा रहा है, या कि आपको सामने से बोलना पड़ रहा है उसके लिए? तो अगर आप सामने से बोलना पड़ रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि ये रीज़न भी हो कि वो सुनता ही ना हो और वो लिप रीड कर रहा हो, आपके मुँह के ज़ाविये जो हैं वो बदलते हो, उसके अकॉर्डिंग बस वो उसको देख के वैसे करना शुरू कर दे। सो ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। और अगर वो प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स को जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, उनको करेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसकी स्पीच की जो उसकी प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो, टंग मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो, या कुछ भी इस तरह से, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी तरह वो चीज़ों को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके लिए खाना लेके जा रहे हैं, खाना यानी बच्चे जो भी दूध, सीरियल कुछ भी इस तरह से खाते हैं। सो अगर आप उसको उनको प्रेज़ेंट करते हैं, उन पे उनके रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, नहीं आते हैं, पसंद है, नहीं पसंद है, वो अपने एक्सप्रेशंस या अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, नहीं करते हैं, अपने नाम पे रिस्पॉन्स देता है बच्चा कि नहीं देता। और डिफरेंट जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में जब पोएम्स को सिखाया जाता है, तो डिफरेंट जेस्चर्स भी साथ में सिखाए जाते हैं। जैसे अ, पीकाबू वगैरह, मुझे अब बहुत ज़्यादा पोएम्स तो नहीं आती हैं, सो आई कांट से एनीथिंग, और मुझे राइम्स भी इतनी ज़्यादा नहीं आती कि वो जो भी उसमें सिखाया जाता है, क्या वो उन जेस्चर्स को फ़ॉलो करता है, उनको कॉपी करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है? क्या वो दूसरों की बातों को समझता है? जो जैसे आप तो समझती हैं, बाज़ वक़्त ये भी होता है कि पेरेंट्स तो समझते होते हैं, लेकिन दूसरे लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे होते हैं। उनको उनकी बात की समझ नहीं आती बच्चे की, ये क्या कह रहा है, और मदर कहती है, "हाँ, मुझे तो समझ आ जाती है, किसी और को इसकी बात की समझ नहीं आती।" अगर ऐसा है, तो भी आपको स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको सिंपल कमांड्स देते हैं, छोटी कमांड्स देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें, जैसे ये उठा के ले आओ, अपने जूते ले आओ, वहाँ रख दो, या बाबा को चाय दे दो। अगर सिंपल चीज़ों को भी फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो अ, ये भी एक सोचने की बात है। क्या वो लफ्ज़ों को जोड़ता है, जुमले बनाता है, जोड़ के इकट्ठा? बाज़ वक़्त हमारे पास बच्चा बिल्कुल सही बोलता होता है, लफ्ज़ साफ बोल रहा होता है, एक वर्ड बोल रहा होता है, और वो उसको जॉइन करना नहीं आता, यानी उसको सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो इट मीन्स कि वो भी स्पीच लैंग्वेज जो है वो उसकी डिले है, और उसमें हमें उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। और आप जो उसको टास्क कर रहे हैं, घर के जो भी डोमेस्टिक टास्क हैं, या कोई एक्टिविटी आप उसको देते हैं, आप उसके साथ मिलके बिल्डिंग ब्लॉक्स खेल रहे हैं, या कोई भी टॉयज़ आप उसके साथ खेल रहे हैं, या प्ले डो है, आप उस तरह से बना रहे हैं और वो आपको कॉपी कर रहा है, नहीं कर रहा, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अ, और बाकी कोई उसको और इन्फेक्शंस वगैरह नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम नहीं है अगर, तो वो मेरा ख़्याल है कि आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, क्वेश्चंस लें मैम अब? हाँ जी, मैं नहीं स्क्रीन ज़रूर। पे जाके ना, स्क्रीन पे आपको शो भी होंगे। अच्छा, हम हाँ, पहला क्वेश्चन है कि कैन स्पीच थेरेपिस्ट इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंशियल लेवल? I think by कॉन्फिडेंशियल लेवल और confidential, कॉन्फिडेंस लेवल? confidence level. It's confidence level. ओके। देखिए, स्पीच लैंग्वेज Good थेरेपिस्ट question, by अगर the way. Good हाँ, question.
काउंसलिंग करना स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की सबसे पहले जॉब होती है। पहली बात तो ये, अगर आपको कोई एक स्पीच का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप स्टटर करते हैं, मैं एडल्ट पॉपुलेशन और चिल्ड्रन दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आप स्टटर करते हैं, आवाज आपकी प्रॉब्लम में है, आप बोलते नहीं हैं सही या साफ नहीं बोलते हैं, तो अगर आपका वो प्रॉब्लम जब रिजॉल्व हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वो चीजें एज इट इज आपके साथ लाइफ में चलती हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जाहिर है उसकी वजह से आपका कम रहेगा, बिकॉज आप कंटिन्यूसली एक प्रेशर में रहते हैं कि मुझे ये है, लोग क्या कहेंगे, जैसा कि कॉमन होता है। तो जी कॉन्फिडेंस जी। लेवल अगर उस हिसाब से अगर वो बात कर रहे हैं तो कोर्स आपके इश्यूज को अगर सॉल्व किया जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना स्पीच थेरेपिस्ट की जॉब में आता है। वो काउंसिल करती हैं, आपके इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, उनके बारे में प्रॉपर बात की जाती है और आपको उनके साथ कोप करना भी बताया जाता है। Okay. So our next question is ke, what strategies or tasks should we use at home to prevent delayed speech and language? जी, उसके लिए ये है कि अगर बच्चे को आपका बच्चा डिलेड है, उसकी लैंग्वेज एक्वायर नहीं हुई है, स्पीच या लैंग्वेज चले दोनों की ही आप बात करते हैं, तो आपको एक तो बच्चे के साथ मोबाइल का यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ करते हैं। उसके साथ लाइव इंटरैक्शन रखें, लाइव उसके साथ बातचीत करें और उसको अपनी जो आप बोल रहे हैं उसको कॉपी करना सिखाइए कि आपको वो देख के कॉपी करे। इसी तरह अगर आप उसको जो है वो जैसे कैमरा का इस्तेमाल में यूजुअली आई कांटेक्ट को इम्प्रूवमेंट के लिए मैं अपना जो है वो सेल्फी कैमरा यूज़ कर सकती हूँ। जो यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे बहुत शाय होते हैं, दे आर नॉट गिविंग आई कांटेक्ट, तो कैमरा एक ऐसी चीज़ होती है जो उनके लिए भी अट्रैक्टिव होता है। बाज़ औक़ात हम उसपे डिफरेंट जैसे फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें वो फिर जी उनके लिए जी जी अट्रैक्टिव जी। हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमने आई बिल्कुल कांटेक्ट बिल्कुल। में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी मैंने देखा है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। इसी तरह आप बच्चों के साथ बुक रीडिंग करें, उनको स्टोरी बुक्स दिखाएँ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपेक्टेशंस भी ना करें, ईज़ी लैंग्वेज रखें बच्चों के साथ और उनको एप्रिशिएट ज़रूर करें। जब भी वो कोई लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हर लफ्ज़ को साफ क्लियर बोले और वो बहुत अच्छा बोले और आप उसको कहें कि, और बाज़ औक़ात ये पेरेंट्स कर भी रहे होते हैं, अगर उसको बहुत मुश्किल वर्ड सिखा रहे होते हैं, नहीं दोबारा बोलो, नहीं फिर से बोलो, नहीं, नहीं अभी नहीं बोलो। तो आप बच्चा जितने अटेम्प्ट कर रहा है उसपे एप्रिसिएशन अगर करेंगे तो 1-2 जो है वो प्रैक्टिस सेशन में वो इम्प्रूव कर जाता है। बहुत हद अब तक बहुत इम्प्रूव हम इस पे बात कर रहे थे तो लाइक एप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट। या बिकॉज़ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बहुत सारी वैसे तो हमने क्वेश्चंस के बाद एक आप कैसे वोकैब्युलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कुछ मैंने टिप्स रखी हुई हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, next question is after how much time if a child doesn't speak we should concern with speech therapist? वो मैंने मेंशन किया, दैट इज़ कि 3 इयर्स तक आपको जो है वो देखना चाहिए, बच्चों के माइलस्टोन्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो देन इट मीन्स कि यू हैव टू कंसल्ट अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। अच्छा, next question is I am a mother of 5.5 years old kid who is having autism. He is having more vocabulary than neurotypical child, but he doesn't have functional language. What should I do to bring him to functional language? Please do tell about techniques. ओके, देखिए पहली बात तो ये है कि एक बच्चा जो आपको अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि उसके पास वोकैब्युलरी है बहुत ज़्यादा, तो क्या वो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से वोकैब्युलरी है? तो क्योंकि ऑटिज़्म में जो बच्चे हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, वो प्रॉपर फॉर्म भी नहीं कर पाते हैं सेंटेंसेस को, और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे भी होते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि वेरिएशन आ जाती है। अगर हम उनकी टेक्नीक की बात करें तो डेफ़िनेटली आप उसमें बच्चों के साथ आप फंक्शनल लैंग्वेज कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो आपकी लाइफ में यूज़ होते हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके साथ ज़ेब्रा की बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ज़ेब्रा कहीं नहीं है, कभी शायद आप सालों बाद कहीं जाएँगे, वन्स इन अ ब्लू मून अगर आपने कोई ज़ू विज़िट कर लिया है तो आप उसको ज़ेब्रा दिखा सकते हैं बच्चे को, या अगर उसको एनिमल्स पसंद है। तो रिपीट करना, बम्बारमेंट जो है वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप बच्चे को ऑटिज़्म अगर बच्चे को है तो आप उसके साथ वो वर्ड रिपीटेडली यूज़ करें, क्योंकि उनको ये स्ट्रगल होता है कि वो लफ्ज़ों को भूल जाते हैं या उनकी लाइफ में जो नहीं रहते हैं, तो इसलिए आपको रिपीट करते रहना ज़रूरी है।
बच्चा जो बोल रहा है, जो पढ़ रहा है काम, उसके साथ-साथ आप उसको नरेट जी? Learning. Repetition is basically learning. हाँ, सो आप जो बच्चा कर रहे हैं आप उसको नरेट करें, जो वो कर रहा है आप उसको नरेट करना शुरू करें। उसमें से डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बच्चों को देखिए ना, आप जो सिचुएशनल लर्निंग होती है वो उसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है, और वो तभी आती है जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल आपने उसको स्विमिंग पूल जो है वो प्रोवाइड किया है सो ही कैन हैव अ फन इन समर, तो आप उसको उससे रिलेटिव जो वोकेबलरी आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आइस या उसमें एनिमल्स आप डालते हैं, तो उसमें फंक्शनल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ इजी लैंग्वेज रखें और वो वर्ड्स यूज़ करें जो आपकी लैंग्वेज या वोकेबलरी में डेली यूज़ होते हैं। Okay. Next question है कि if a cleft palate child, if somehow surgery can't be done, a child with delayed milestones, what about her language development? देखिए, सबसे पहले तो अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो आई थिंक उसकी सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी है। उस के बाद ही उसकी स्पीच पे हम बात करेंगे, क्योंकि उसको फीडिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसको उसके नाक से खाना बाहर आ सकता है, या उसकी ओरल उसकी फीडिंग भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसकी वॉइस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसी तरह उसके वर्ड्स जो हैं वो भी उसकी प्रॉपर प्रोनंसिएशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो टंग की मूवमेंट्स उस तरह से नहीं एक्वायर कर पाएँगे, तो जिसकी वजह से भी उनको सबसे पहले तो आई थिंक उसकी सर्जरी होनी ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक काम करने का है वो सबसे पहले तो वो करना चाहिए। हाँ जी। फिर उसके Okay, बाद next कंपनसेशन question. स्ट्रेटजीज ही यूज़ हो सकती हैं। जी। What are non-verbal ways to communicate with children? Non-verbal ways to communicate with children, I आप was thinking non-verbal about ways क्यों? peekaboo. I was thinking about peekaboo. Is it a non-verbal way? एक्चुअली नॉन वर्बल आप क्यों होना क्यों चाह रहे हैं? या तो अगर आप उनको मेरा ख़्याल है कि शायद ये देखना चाह रही हैं कि हम उनको किस तरह से एक्सप्रेशन सिखा सकते हैं, या हम उनको किस तरह से जो है वो जेस्चर्स सिखा सकते हैं, शायद ये उसके बारे में बात कर रही हैं। और अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए, यानी उन्हें उन्हें अगर लगता है कि बच्चा बिल्कुल ही बोलता नहीं है, शायद इस क्वेश्चन की ये भी हो सकती है सिचुएशन के वो इस टर्म में करना चाह रही हूँ कि अगर वो बिल्कुल नहीं बोलता तो फिर हमारे पास कौन से अदर वेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम है, एएसी डिवाइसेस हैं, जिसमें हम सिवियरली जो स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है हम उसमें रिकमेंड करते हैं, और उसमें फिर स्पीच थेरेपिस्ट प्रॉपर उसको जो है वो गाइड करती हैं, पेशेंट्स को प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग करवाती हैं ताकि वो उसको यूज़ करें, ताकि उनकी कम्युनिकेशन जो है वो उसको बिल्डअप किया जा सके। ठीक है. Would you suggest bilingualism at home? यस, अगर आप 2 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं जैसे मैंने कहा, तो इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा 2 लैंग्वेज आप घर में यूज़ कर रहे हैं और वो नहीं सीख रहा, तो वो उसको मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी वज़ह से बच्चा डिले है। अगर वो एक लैंग्वेज में भी फ्लुएंट है तो इट्स फाइन, अगर वो दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है तो इट्स ओके, एक लैंग्वेज में तो फ्लुएंट है, दूसरी में भी वो वक़्त के साथ-साथ वो सीख जाएगा, और बच्चों में ये मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि ये उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को एनहांस करती हैं, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेज़ को बच्चा सीख रहा है, और बच्चे इस एज में ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं, 2-3 लैंग्वेजेज़ को सीख सकते हैं। Does bilingualism affect language development? नो, नॉट एट ऑल। Okay. Next question. How can I tell if my child has a language problem or is just late bloomer? Most of us are late bloomers. देखिए हमने जैसे माइलस्टोन्स की बात की, तो अगर तो उसमें इसके लिए भी आपको पेरेंट्स वेट करते हैं, 2.5 साल तक आप वेट कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आप यही समझें कि आपका बच्चा जो है वो लेट ब्लूमर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो, इसका मतलब उसके साथ कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं जो कि जिनको कि डिस्कस करना ज़रूरी है, जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है, तो इट्स बेटर कि आप टाइमली चीज़ों को जो है वो एड्रेस करें। Okay. How does speech delay affect learning?
डेफिनेटली देखें, लर्निंग एक हवाले से अगर हम बात करें तो बच्चा अगर उसकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड तो कर रहा है मगर उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और फिर उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही। पॉसिबली आप ही ये सोच रहे हो यानी पेरेंट्स की बात कर रहे हो कि ये तो बोलता ही नहीं है, इसको क्या फ़ायदा ले जाने का, इसको क्या पता, इसको यूजुअली ये होता है कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये तो बोलता ही नहीं है, हम इसे क्या सिखाएँ? सो उस तरह से जो एक बाउंड्री डेवलप की जाती है एनवायरनमेंट की तरफ से, वो डेफिनेटली उसकी लर्निंग को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। मगर अगर आप ओवरऑल लर्निंग की बात करें तो वो तो एज के साथ-साथ जो उसकी डेवलप हो रही है, वो हो रही है। लेकिन लैंग्वेज की वजह से क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने आप को भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा और वो उस तरह से अपना आपकी चीज़ों को इन्वॉल्व भी नहीं है उन एक्टिविटीज़ में, तो ऑफ कोर्स उसकी लर्निंग तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अच्छा मैम, आई वाज रीडिंग तो उधर लिखे हुए थे आर्टिकल्स में कि यूजुअली जिनको डिले होता है दे आर इंटेलिजेंट किड्स, यू नो, आई वाज रीडिंग दैट। पॉसिबली मेरी नज़र से आई ऐसा डोंट कुछ नो नहीं कि दिख रहा है कितना कि सच है ये, लेकिन अ, ये था। मैं एक बात यहाँ पर थोड़ी-सी इस तरह से करूँगी कि कुछ जो लोग बहुत अच्छे लिसनर्स भी तो होते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छे लिसनर्स भी होते हैं। उसमें डिपेंड ये करता है कि आपने किसी एक स्टडी की बात अगर की जाए, तो किसी एक स्टडी की बेसिस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये एक ऐसी डेफिनिटली चीज़ है। अगर एक और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा जो है वो लेट बोल रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो इंटेलेक्चुअली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है उसकी इंटेलिजेंस और या वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट है। तो वो तो वेरिएशन है, बच्चों में डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह से जो है वो उनको किस तरह से उनकी जेनेटिक्स में इंटेलिजेंस है, वो कितना उन्होंने अच्छा सीखा है या एनवायरनमेंट का कितना अच्छा इम्पैक्ट है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। So I don't think so. We relate speech definitely intelligent होता है। हम ओके। डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कह सकते, डेफिनेटली हो भी सकते हैं। अगर हम बात करें, आप भी हो सकते हैं इंटेलिजेंट, वो बच्चा जो वो नहीं बोलता। वैसे भी जो लोग कम बोलते हैं उनको ज़हीनी कहा जाता है। हम्म। Cleft palate surgery can't be done due to heart issue. Child is growing. Language is required for everyone. There should be some tools or anything to help the child learn language or express his herself, his ओके, herself. आई थिंक मैंने कहा ना कि इसमें हम कंपनसेशन जो है स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी स्पीच को डेवलप कर सकते हैं और अगर ये तो आप मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप क्लिनिकली ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद आप ये थेरेपिस्ट की डिसीजन होगा कि वो क्या डिसाइड करती हैं कि इसको एएसी डिवाइस रिकमेंड करनी चाहिए, उसकी अगर इंटेलिजेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ है, बाकी उसकी फिजिकल मूवमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ है, ये बहुत सारी चीज़ें और भी अगर उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो हमको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या उसको किस तरफ ले जा सकते हैं ताकि उसकी कम्युनिकेशन को बिल्डअप किया जाए। तो हम डेफिनेटली उसको एएसी डिवाइसेस की तरफ ले जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड इश्यूज़ हैं तो। अदरवाइज़ स्पीच लैंग्वेज बनाया जो है वो डेवलप की जा सकती है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज पे काम करें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। लेकिन क्योंकि क्लेफ्ट की सर्जरी अगर पैलेट है, लिप भी है तो हो सकता है उनकी जो पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं वो क्लियर ना हों। यानी आवाज़ जो है वो भी यूजुअली नेज़ल वॉइस होती है, तो उसमें भी वो भी चीज़ें वैसी की वैसी रह जाएँगी, मूवमेंट्स की वज़ह से भी लफ्ज़ों की क्लैरिटी पे बहुत सारे लफ्ज़ों की क्लैरिटी पे शायद हम काम ना कर पाएँ। Okay. What are the early signs of language delay? ये तो हमने milestones की उसमें बात की थी, but still do you want हाँ, to बिल्कुल answer? अगर आप मारिया एवान अगर आप हमारी फुल वीडियो देखें तो आपको इन सारी चीज़ों पे हमने बात की है, सो यू कैन वॉच देम और आप By क्लियरली the way, Ma'am Maria Awan is my teacher, and she's an expert. ओके, आई Thank you थिंक so हो much, सकता है Ma'am उन्होंने Maria, लेट for जॉइन your किया हो, support. हो सकता है उन्होंने लेट जॉइन किया हो। हाँ, था। अच्छा, ओके, अब हम अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं जिसमें हमारी तारीफें हुई हैं। ओके। Good to see, good to see you, Elia, after long time. Thank you. I can't see you, but thank you. Uh, uh, आपकी तारीफें भी हुई है मैम, अब हम आपकी तारीफों पे जाते हैं। जी, जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑडियंस, दोज़ आर वाचिंग फॉर अस, आई होप By the way, हमारा Ma'am Krishna has her own YouTube channel. You guys can also subscribe it. मैम, यस आप कुछ कहना चाहेंगे अपने YouTube चैनल के बारे में? Somebody, या Aisha Khan बिल्कुल। has said that Ma'am Karishma best. Thank you. Thank you, Aisha. Thank you very much for your love.
यूट्यूब चैनल Awesome. थैंक यू Okay. हयात अली शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। यूट्यूब चैनल है मेरा करिश्मा स्पीच क्लिनिक के नाम से, जिसका पर्पस सिर्फ ये है कि हम वहाँ तक अपने जो है वो अपने लोगों को हेल्पफुल साबित हो उनके लिए, जहाँ शायद हम तो नहीं पहुँच सकते, यूट्यूब पहुँच जाता हो, इंटरनेट पहुँच जाता हो। और बहुत ज़्यादा मुझे वैसे पेरेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं और बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि वो जब ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने आपकी वीडियोस से सीखा है, हमने बहुत सारी टेक्निक सीखी हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, मेरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो फिर आपको आपका पर्पस जो है वो फुलफिल होता नज़र आता है कि हमारा बेसिकली हम जी जी एक ऐसी प्लेटफॉर्म से काम करते हैं जब बहुत सारा कुछ तो हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते एट द सेम टाइम। तो अगर जैसे बहुत सारे मेरे सेशंस हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं, बहुत सारी स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो अगर चाहें तो उस करिश्मा स्पीच क्लिनिक के नाम से है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब करें। आप लाइव सेशंस भी दे सकती हैं जो कि पेरेंट्स की कंसेंट के साथ हैं। हमने उसको अपलोड किया है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज, बेसिकली मेरा तो पर्पस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे समटाइम तो ऐसे होता था कि कौन सी एक्टिविटी करवाई जाए, बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करवाएं। और वो फिर आपको एक बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पर उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड यू कैन शेयर इट टू अदर्स, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी जो है वो वीडियोस को इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी अपलोड करूँगी, दैट कैन बी होपफुली आपके लिए बड़ी वो फ्रूटफुल होंगी और आप उनको जो है वो आगे बहुत सारे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। Okay. My classmate is saying Faizan Ahmed ke he has already subscribed your channel. Oh, Thank you, thank you, Faizan. Fazan. Thank you for that. You can join us in on Insta because I'm more frequently online over there on Insta, और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कुछ मैसेजेस वगैरह भी कर रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेफिनेटली पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें बताई जाए, तो वो तो आपको चैनल में ही मिलेगी। और क्योंकि हम बहुत कुछ इस 1 घंटे में हम नहीं उसको कर पाएंगे, Okay. तो कुछ Uh, ऐसी वोकेबलरी इंक्रीजिंग की हम जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि होनी चाहिए ताकि हम इसको टाइम शॉर्ट होने की वजह से फटाफट इसको खत्म कर सकें। क्या ख्याल है हमारे? सॉरी sorry, ma'am. मैंने Sorry. कहा हम जो स्ट्रेटजीज हैं कुछ हम अगर उनको कर लें डिस्कस कि हम कैसे वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम शॉर्टली इस चीज़ को जो है वो हेल्प कर पाएँगे लोगों को, जी जो जी लोग जी नहीं मैम, सोच रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल कौन-सी बिल्कुल. स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो उसके बाद अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी आंसर करेंगे। ठीक है मैम मारिया, यू कैन डेफिनेटली आस्क. मैम मारिया को कोई कह रहा है कि आप क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है. नहीं, हाँ. मैं आप ज़रूर पूछ सकती हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप कभी भी पूछ सकती हैं। इवन मैं उसको छोड़ देती हूँ और आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस इफ यू आर देयर मैम मारिया। ओके. जी मैम, आप जी आप बात करें स्ट्रैटेजीज की. जी जी जी. हाँ, सो देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज जिसमें सबसे पहले तो आप ये करें कि बच्चे को एनवायरनमेंट ऐसा दें जहाँ पर आप उसको अपॉर्चुनिटी दें वो बात करने की, आप उसके साथ बात करें और डिफरेंट वर्ड्स और जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं आप उनको यूज़ करें। अगर एक बच्चे ने एक वर्ड सीख लिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं आप उसी को ही आगे लेके चलती रहें कि नहीं इसको पानी आता है, पानी इसको सिखाना है, ये पानी ही समझता है या मम्मी समझता है, हम उसको और कोई वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। तो आप उसके साथ डिफरेंट सिनोनिम्स, डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ करें। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करें जो कि एक्सप्लेनेटरी हों, जिसमें कि बच्चे को एक क्रिएटिव जो है वो उसकी उसकी वोकेबलरी हो जाए, वो उसको डिफरेंट सिचुएशन में उन वर्ड्स को यूज़ करना आए। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक का आप उसको पैटर्न सिखा रहे हैं कि ये जी ये देखो सर्कल्स बने हैं इस पे या इस पे ट्रायंगल्स बने हैं, तो आप उसके साथ वो वर्ड्स यूज़ करें जो कि बहुत जो है वो डिफरेंट भी हों, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हों, क्रिएटिव भी हों और अनयूजुअल भी हों। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो उसके पास वोकेबलरी बढ़ती चली जाएगी। आप सिनोनिम्स जो हैं उनकी सब्स्टिट्यूट करें, डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ करें। और अगर आप उसको अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो आप उसके साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप उनको डिज़ाइन करें, उसके साथ अल्फ़ाबेट्स को बोलें, इमिटेट करवाएँ उसको।
और उसके अगर वो थोड़ा बहुत भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं तो उस पे एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, उसको रीइंफोर्स करें, आप उसको कुछ भी अच्छा आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि आप अगर उसको चॉकलेट पसंद है तो उसको पूरी की पूरी चॉकलेट आप दे दें, 10-15 बार्स जिसमें हो, तो इट्स बेटर कि आप रीइंफोर्समेंट जो है वो छोटी साइज़ में रखें और उसको हर अचीवमेंट पे बच्चे को जो है वो उसका इनाम मिलना चाहिए, जो कि हर एक इंसान को जो है वो अच्छा लगता है, जब भी कुछ करता है उसका एप्रिसिएशन मिलती है, वो और उससे अच्छा बेहतर करता है और उससे अच्छा बेहतर करता है। क्रिटिसिज़्म ज़रूरी है हर जगह पे, लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म जो है वो बच्चे को उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक जो है वो नीचे गिरा देगा। इसी तरह आप लेबल कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं या आप ऐसी बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि पिक्चर बुक है, आप उसमें चीज़ों के नेम वहाँ पर आप उसको लेबल करा सकते हैं। बार-बार उसको जो है वो उनके साथ रिपीट करके उसको विजुअलाइज़ करा सकते हैं। वीडियोज़ में आप उसको दिखा सकते हैं। फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मैगज़ीन है, तो आप मैगज़ीन से वो आप मतलब उस पर्टिकुलर जो भी आपने वर्ड सिखाना चाह रहे हैं, आप उसकी पिक्चर कटवा लें बच्चे को, ताकि वो इंटरैक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको लर्न करना ईज़ी हो, इंटरेस्टिंग लगे, ना कि आप उनको पढ़ाने बैठ जाएँ, पढ़ो ये वाला हाथी है, ये वाला इसको इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, इसको उर्दू में हाथी कहते हैं। सो मेक इट इंटरेस्टिंग इन अ वे कि बच्चे को उसमें लर्न करने में अच्छा लगे, मज़ा आए। एनिमेटेड आप पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल अगर आप यूज़ कर ही रहे हैं तो। आप राइम्स उसके साथ प्रैक्टिस करें, जो वो कर रहा है बच्चों के साथ जो वो कर रहे हैं फर्स्ट कॉपी करने के लिए सबसे अच्छा जो एक स्ट्रेटजी वो ये भी यूज़ होती है कि जो बच्चा कर रहा है आप उसको कॉपी करना शुरू करें। सो फिर वो जो आप कर रहे हैं वो कॉपी करना शुरू कर देगा। सो इसी तरह अगर आप उसको रीडिंग उसकी इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं तो रीडिंग लाउड करें, रीडिंग अलाउड टुगेदर, और फिर आप उसके साथ-साथ चीज़ों को जो है वो आप इस तरह से एनहांस करें कि जो आपके पास रीडिंग मटेरियल है वो उसकी एज ग्रुप का भी हो, और अगर उसने उसको अच्छे से उसको एक्वायर कर लिया, उसको लर्न कर लिया, तो थोड़ा-सा उससे ऊपर का लेवल भी आप ले जाएँ। यानी थोड़ी-सी वो चीज़ की वो भी चीज़ हो जो स्लाइटली उसके अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी-सी अबव हो, ताकि उसके पास मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में जो है वो नई से नई वोकैब्युलरी, नए से नए आइडियाज़ जो हैं वो उसको सुनने को या देखने को या उसको एक्सपीरियंस करने को मिले। और बच्चों को नेचुरल जो प्ले है, एक बहुत अच्छी जो है ना वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, अगर आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में प्ले प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह डिफरेंट और स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर बच्चा एक सिचुएशन में है, आपने उसको कोई गेम दी है या वो कुछ कर रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास एक ट्रक है, एक कार है, एक उसके पास जो है वो हेलीकॉप्टर है, तो आप वो जो कर रहे हैं, आप उसके साथ-साथ आप उसको वो वही चीज़ आप नरेट करें, वो जो कर रहा है उसी जैसे कमेंट्री होती है कि क्या कर रहा है, बॉलर ने ये किया, जो जो बैट्समैन ने है वो उसने जी इस तरह से, मुझे नहीं अब इतना तो नहीं आता उनकी टर्मिनोलॉजी, बट व्हाटएवर दे आर डूइंग, एक कमेंट्री आपको करनी है ताकि आप उसको जितनी भी ज़्यादा है आप उसकी ऑडिटरी जो है वो आप उसकी कर सकें ट्रेनिंग, उसको सुने ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को, और फिर वो डेफ़िनेटली वो पूरे जुमले आपकी तरह नहीं बोलेगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो डेफ़िनेटली सीखना शुरू करेगा। फिर जो वो बोल रहा है उसके साथ-साथ आप वो भी उसको वर्ड सिखाएँ, रिपीट करें वर्ड्स को बार-बार, जो नए वर्ड्स आप उसको सिखा रहे हैं। और कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी वर्ड है, अगर आप उसको सिखा रहे हैं, उसको जर्नलाइज़ ज़रूर कराएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ने इस रिकमेंड हम यूजुअली ये कहते हैं कि एक बच्चा डिले है और अगर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे वर्ड से स्टार्ट करें जो फंक्शनल वर्ड्स हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन में डेली यूज़ होते हैं और उसको उसकी ज़रूरत महसूस हो और वो कहे, वो बोले, ताकि उस पे जब वो उसके रिस्पॉन्सेज़ ऐसे आएँ, तो उसको जो एक्साइटमेंट है आपकी तरफ से समझे जाने की, वो भी उसमें डेवलप होगी, उसको आप अच्छा फ़ील कराएँगे, तो वो और से और न्यू वर्ड्स भी बोलेगा। तो आप जब भी उसको वर्ड्स वो सिखा रहे हों, वो फंक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे हों उसके साथ, फंक्शनल वर्ड्स सिखा रहे हों, तो इट्स बेटर आइडिया कि आप उन वर्ड्स को यूज़ करें जो कि अम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ़ में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, और उन उन वर्ड्स को आप इंटरेस्टिंग बनाएँ, उनमें एक्टिविटीज़ आप डाल दें, तो वो जो है वो आप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। और अगर आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको लाल मिर्च सिखा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको लाल मिर्च अ, दिखाएँ, उसको पॉसिबल हो तो थोड़ा-सा टेस्ट कराएँ, इतना ज़्यादा तो नहीं मैं ये कहूँगी। तो ये ना हो कि आप उसको पूरी की पूरी समझ आप उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप उसको सॉल्ट सिखा रहे हैं तो उसका टेस्ट भी कराएँ, ताकि आप जब उसको कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज़ कराएँगे तो उसकी जो बच्चे की जो उसमें इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होगा, और उसकी मेमोरी में वो वर्ड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक रह जाएँगे।
क्योंकि एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल किस तरह से कितनी परसेंटेज में अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि कहाँ-कहाँ से कितना-कितना सुनते हैं, तो या कितना-कितना वो लर्न करते हैं। जैसे बच्चे 30% तक की जो लैंग्वेज है, वो तकरीबन वो वहाँ से सीखते हैं जो वो देख रहे होते हैं, ठीक है? 20% जो उनकी लैंग्वेज है वो भी वहाँ से भी लर्न करते हैं, जो सुन याद रखते हैं, जो वर्ड याद रखते हैं, सुन के जो याद रखते हैं, 20%। 30% वो जो वो देखते हैं, फिर 10% वो जो वो पढ़ते हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा एज़ अ स्टूडेंट हम पढ़ के जो चीज़ हम कर रहे होते हैं शायद वो इतनी जल्दी हमें याद नहीं होती जितनी हम उस चीज़ को या तो विजुअलाइज़ करें या हम उस पे प्रेज़ेंटेशन बनाएँ बहुत अच्छी बिल्कुल, सी या बिल्कुल। उसमें कोई या हम उसका कोई सैंपल बनाएँ या उसमें कोई प्रॉपर एक्टिविटी हो, क्लास एक्टिविटी हो, तो हमें वो जल्दी और क्विकली याद हो जाती है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बच्चे भी इसी तरह 90% तक की जो उनकी मेमोरी है वो जल्दी अच्छे से याद करते हैं जब वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जब वो उसको कर रहे होते हैं। सो इस तरह जो 70% उनकी मेमोरी होती है वो जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या जो वो लिख रहे होते हैं। वो इसलिए 70% कि वो जो इतना कुछ उन्होंने लर्न किया अब वो जो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो इसका मतलब उनके पास अच्छा मेमोरी में स्टोर है वो नॉलेज। इसलिए अब वो उनकी एग्जीक्यूशन में आया है। Okay. Do you want to say something more, or like should we I wrap this think it's session? too much. It's too much for today. And Yeah, I think बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं informative था, और like I literally enjoyed, ma'am. I hope कि you also had a great time with me, even though it was my first time ever hosting digitally. You did really a good job for You are a pro in it. You क्योंकि are a देखो pro in it, but but it was my first time. थैंक यू वेरी मच बट ये है कि वो आपने आज कर लिया है नो आपका हमारा जो कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन था उसका आंसर यही हमें अब ये देना चाहिए कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपके अंदर वो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी नहीं डेवलप होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी नहीं आएगी। तो आप कुछ भी जब भी लर्न करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, देन डू इट एंड डोंट हेजिटेट, जस्ट जंप इन इट और Yeah. फिर छोड़ दें जो भी होगा तो वो Yeah, exactly. Don't think about pressure. Don't think about pressure. Just do it. Like even I was like thinking ना कि कौन सा I'm representing Pakistan. It's just like a session. हाँ, तो बिल्कुल। मतलब देखिए जो लोग thank you so पाकिस्तान much, को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ma'am. उनके पास भी तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो भी तो यहीं से ही आया, उन्होंने यहीं से तो स्टार्ट लिया। जी। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और आई नो कि हाउ बिजी यू आर, और आपने अपना वक्त, हम इतना कीमती वक्त हमें दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। एंड आई जस्ट होप कि वी स्टे इन टच, एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी, लाइक माय क्लासमेट, माय टीचर्स, एवरीबॉडी। सारे लोग आए और सबने सपोर्ट किया, लाइक माय फैमिली मेंबर्स, एवरीबॉडी। So I just थैंक यू want to सो personally मच thank एवरीवन। everybody, and just keep या supporting holistic. और at the same time I want to thank holistic team के उन्होंने एक newbie को as a host लिया. They just give me this chance के Elias, just do it. So I want to thank Maria, Kainat, Misbah के thank you so very much. यस, बेस्ट ऑफ Okay, लक ma'am. टू होलिस्टिक। थैंक यू सो Yes, मच। best of टेक luck to केयर। them. और just keep supporting them के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह, इतने यंग बच्चे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियसली। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन कॉल मी, you can get my थैंक यू सो contact वेरी numbers मच। from all of us। थैंक यू। Okay, Allah Hafiz। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।